all the dignitaries, dear parents and teachers, on behalf of the whole Divyapat Parivar. This evening is a celebration of creativity, achievements, and the indomitable spirit of our students. Today's theme, Naya Daur, Vishwa Falak, पर हमारे हस्ताक्षर is a very special occasion. It beautifully captures the essence of transformation and progress of New India. आज नए दौर में आज आप देखोगे जो कक्षा में दिखते हैं शांत, उनके पैरों तले थिरकता नृत्य देखोगे. जो कक्षा में दिखते हैं निराश, निष्क्रिय, उनकी आंखों में उम्मीदों का आसमान देखोगे. नए दौर में सपनों का समंदर और कुछ पाने का जोश देखोगे. राग में बहते उल्लास और ऊर्जा का नया रूप देखोगे. अगर खुलते रहे हाथ, बजी तालियां, बस इसी तरह अपने हस्ताक्षर से उभरता एक पूरा मुकद्दर देखोगे. As you witness the incredible performance and presentations prepared by our students, you will see glimpses of this vibrant future. The program you will experience is not just a reflection of the values and dreams that shape New India, but an expression of talent. आज हर कदम पर संघर्ष है तो उम्मीद भी है. मेरे दादोसा की लिखी कुछ पंक्तियों को प्रस्तुत करना मेरा गौरव है. वह लिखते हैं, किसने नहीं किया संघर्ष, किसने नहीं किया संघर्ष, परिश्रम कर विकास का हल निकलेगा. निगाह को अपने निशाने पर रख, पुरुषार्थ से ही पारस निकलेगा. मोड़ अंधे होते हैं, रास्ते कभी नहीं, मोड़ तक चल नया आकाश निकलेगा. पत्थर को पिघलाएगा पानी निकलेगा, पत्थर को पिघलाएगा पानी निकलेगा. समुद्र का मंथन कर वहीं से अमृत निकलेगा. With the same thought, I extend my heartfelt gratitude to our guests, parents and teachers who have once again put their trust and faith in us by providing this wonderful opportunity. Now, without any further ado, let us begin this festivity. Good evening, everyone. I, Paulumi Gaur, with Vinita Soni, welcome you all on this joyous occasion as we celebrate the annual function of Divyapat School. Naya Daur, Vishwa Falak par Hamare Hastakshar. This evening marks a symphony of achievements, dreams, and hopes that reflect the vibrant spirit of our institution. To ensure a smooth and enjoyable experience for everyone, we request all parents to adhere to the instructions given. Your cooperation and contribution to the success of the annual function and help create a memorable experience for everyone. Thank you. अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने का नाम है शिक्षा. And today, as we gather here, let us begin this evening with an act that symbolizes wisdom, learning, and enlightenment, the lighting of the ceremonial lamp. So good evening, my esteemed guests present here, my parents, alumni who could take out time and be here with us. You are always welcome. We love to have you back in the campus. And of course, my wonderful kids here. It is an honor to stand in front of you and today and to celebrate the momentous milestone in the journey of Divyapat School. This year has been a year of achievement. Divyapat became an adult as it turned 18 this year. This is just not a celebration of years, but a testament of unwavering commitment to excel, grow, and for the holistic education we have been taking care of. In the past few years, we have witnessed remarkable transformations in our school. As a team, we have been tirelessly working to achieve, to adapt, to innovate, and to elevate the quality of education we offer. The leap of becoming a CBSE affiliated institution has a significance in the chapter of the history or the story of Divyapat. And it opened the new doors of opportunity
not only for our students, but for the members and the staff too. We are immensely proud to share with you the efforts of amalgamation of curricular and co-curricular activity which Divyapath has been taking since last 18 years has borne fruits. And now you can see our students achieving and excelling not only in academics but also in sports, in cultural and other spheres of development needed. From achieving top grades in the board exams to securing applause in the cultural and the sports competition, as you would have seen earlier, is what we are immensely proud of. The biggest highlight of the year for us has been the Times Education Award, which Divyapath has received for holistic attitude towards education or approach in education across Gujarat. This recognition is not a trophy, but a validation of our efforts, of our philosophy that true education goes beyond textbook. It involves nurturing minds, building characters, instilling values, and to prepare students to excel in our life. Our collaboration with Udgamverse is also extension of our efforts in the same direction. It's a synergy of vision with expertise. This year's annual function theme, Naya Daur, Vishwa Falak Par Hamare Hastakshar, is perfectly aligned with our vision. It reflects the spirit of transformation, innovation, empowerment that is defining our nation today. At Divyapath School, we are preparing our students to become the change makers of the new era, equipped with skills, resilience, and values needed for them to lead tomorrow. As we reflect on the journey and challenges, the timeless words of Sri Hari Rai Bachchan inspires us, and this is one of my favorite words. लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. This lines reminds us that perseverance and determination are the keys to overcome the obstacles and to achieve what you wish for. They are the values we instill in our students and prepare them to face the world with courage and determination. We extend our heartfelt gratitude to the parents for their constant support, to my teachers for the determination and hard work they put in, to my students for the enthusiasm and continuous work they are doing. This journey would not have been possible without the collective efforts of every single one in the Divyapath family. And as you can see, our staff members are not our employees, but they are our family members. So this is a family picture for you to see. And as we step into the another year, we pledge to continue raising the bar, striving for even the greater heights. Together, let us shape the brighter, more empowered future for our kids and make Divyapath School a beacon of excellence. At last, but not the least, I would really like to appreciate the efforts and thank really the team of Dreamworld, Earthsha team, who has put in their heart and soul in making our vision of Naya Daur into reality in the form of this mega event, along with Harjinder sir, who has taken a lot of efforts for preparing our yoga students. Thank you so much, everybody. We wish to always have your constant support because you are our backbone. Till our parents are with us, till our students are doing well, I'm pretty sure we are going to reach somewhere very high. Thank you so much for taking time out with us. Thank you. Ma'am, for your valuable insight. It is now my privilege to invite someone who has been the cornerstone of our institute's success and growth, a dynamic leader, an inspiring educator, and a compassionate mentor. Our principal, Ms. Durga Lakshmi, has always believed in nurturing and the potential of every student while fostering a culture of excellence. With her visionary leadership and dedication, Divyapath School has led a remarkable achievement. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our respected principal to the stage. Good evening, distinguished guests, respected members of the management, parents, staff, and dear
dear students. It is with immense pleasure and pride that I present the annual report. This report is a reflection of the achievements, milestones, and endeavors undertaken by Divyapat School to nurture young minds and shape the leaders of tomorrow. We believe in holistic development, and this year was no exception. It is with great pride I would like to mention that we received an award for the holistic development from the prestigious Times Group of India. Let me brief you about the innovations and initiatives we have undertaken. We introduced the DEAR period, drop everything and read, to inculcate reading habits in our students. Students were encouraged to bring books from home and read. This enhances their critical thinking as well as their comprehension skills. To enhance the learning environment, we have upgraded our labs and libraries. Now we are the proud owners of 6,000 plus books where our children can refer and read. Various clubs were introduced to encourage students to express and explore their creative ideas. Clubs like Environmental Club, Literary, Soup and Bowl, Theatre, Science and Quest Bowl play a crucial role in enriching the overall education and social experience. Participation in club activities improve the teamwork, confidence, and also provides a platform to develop a hobby. Our school assembly is a sight to behold. Every day, the students line up for the mass assembly where they recite the prayer and the pledge. I believe many of the people here wouldn't remember the pledge or wouldn't know the pledge by heart, but if you take any student of Divyapat and ask him to recite the pledge, he will do it. That's an assurance from me to you, parents. A beautiful thought for the day is shared by the student. It is also the time when the students are appreciated for the achievements they have received. Now, talking of the achievements, let me walk you through a few of our many cherished moments. Our school won the bronze medal at the national level in the World Robotic Olympiad. Man Tejwani of class 10 was one among the 300 students across India for the Indian Space Research Organization's prestigious Young Scientist Program Yuva 2024. Students of Divyapat also participated in the Bharat Vikas singing competition and bagged the first prize. It's not in academics alone. Divyapatians show their grit and determination in sports too. Our sports team participated in various tournaments across the state and won many accolades. Divyapat School volleyball team of girls won the silver medal in SGFI district tournament. Again, in karate tournament, many awards were won by our students organized by the Gujarat Karate Federation. Parv Patel and Krishav Patel, siblings, won the first position and the second position in the SDFI swimming competition. Our students showed their prowess in Kabaddi competition held by SFA and bagged the runner-up position. Apart from all this, our teachers regularly attend training and workshops, ensuring that they stay updated with modern teaching methodologies. As a responsible institution, we actively contributed to the community through activities like cleanliness drives, charity events, and awareness campaigns. We are immensely grateful to the constant support and cooperation of our parents. This partnership has been vital in achieving our shared goals. Before I conclude, I extend my heartfelt gratitude to the management for their vision, the staff for their dedication, the parents for their trust, and the students for their enthusiasm and achievements. Together, let us continue to strive for excellence and make Divyapat a beacon of learning and growth. Thank you. भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कोई है वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। समय का चक्र घूमता रहा, मेरे ज्ञान की सीमाएं विस्तृत होती रही। इस समय कई बड़े बड़े सम्राट और साम्राज्यों की ख्याति दूर दूर तक फैलती गई। सदियां गुजरने लगी और फिर अहिंसा की एक आवाज दुनिया भर में गूंज उठी। इस पवित्र और पावन भूमि पर एक और महान विभूति ने जन्म लिया और वो विभूति विश्व के कई कोनों में बुद्ध बनकर छा गई। गौतम बुद्ध ने इस मिट्टी में जन्म लेकर इस महान भूमि को और अधिक महानता प्रदान की। बुद्ध के विचार रक्त की एक बूंद गिराए बिना दुनिया के कई क्षेत्र में फैलने लगे। दुनिया भर में ये वो समय था जब राजा महाराजा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए लहू की नदियां बहाते थे। ऐसे समय में अहिंसा का प्रथम बोध बुद्ध ने दुनिया को सिखाया। उन्होंने कहा, धरती को जीतने की जरूरत नहीं है, हृदय को जीत लो, धरती स्वयं आपकी हो जाएगी। सिर्फ इस भूमि पर ही नहीं, बुद्ध के ये विचार विश्व भर में फैले और अनेक लोग उनके बताए मार्ग पर चल पड़े। शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं
धम्मं शरणं गच्छामि इस नए दौर की अनोखी यात्रा में और आगे बढ़ते हैं। समय का चक्र घूमता रहा, मेरे ज्ञान की सीमाएं अधिक विस्तृत होती रही। प्राचीन काल से ही मेरे भीतर बसने वाले लोगों ने ज्ञान को ही प्रगति का प्रमुख आधार स्तंभ माना, जिसके प्रमाण इतिहास में मिलते हैं। इस समय दौरान कई साम्राज्य मेरे भूभाग में फैलने लगे। इन साम्राज्यों में से एक विशाल साम्राज्य मेरे दक्षिण भूभाग में खूब प्रसिद्ध रहा। वो साम्राज्य था चोल साम्राज्य। इस साम्राज्य में कई शक्तिशाली, समर्थ और प्रसिद्ध सम्राट हुए, जिनकी बदौलत इस भूमि की समृद्धि की बातें दूर दूर तक फैलती गई। इस समय दौरान ये भूमि सिर्फ ज्ञान ही नहीं, धन, कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, औषधि आदि का भंडार भी बनती चली जा रही थी। एक ओर मेरे ज्ञान और समृद्धि की सीमाएं बढ़ती जा रही थी, दूसरी ओर दुनिया भर के लोग इस भूमि को देखने को लालायित हो रहे थे। कई विदेशी यात्री भी यहां आए, जो मेरी भव्यता, दिव्यता और समृद्धि को देखकर हक्के बक्के रह गए। फिर एक ऐसा बुरा दौर आया, इस समृद्ध भूमि को न जाने किसकी बुरी नजर लग गई। विदेशी आक्रमणकारियों ने लालच और स्वार्थवश इस भूमि का अहित किया। मेरी भव्यता पर निराशा रूपी अंधकार के बादल छाने लगे। ये मध्य युग का समय था। मध्ययुगीन समय इस भूमि के लिए कठिन रहा। विदेशी आक्रमणकारियों के सामने मेरे सपूत झुके नहीं, इस भूमि के लिए लड़ते रहे और अपनी वीरता का परिचय दिया। मेरे ऐसे सपूत थे। मेरे इन सपूतों की वीरता ने आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दी। वो भारत जो प्राचीन काल में दुनिया में सिरमौर था, एक बार फिर से दुनिया के सामने अपनी क्षमताएं दिखाने के लिए खड़ा होने जा रहा था। अनेक विभूतियों ने इस समय दौरान इस पवित्र भूमि पर जन्म लेकर इसका गौरव बढ़ाया। इनमें प्रसिद्ध नाम है स्वामी विवेकानंद का। हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड को सबसे पहले जाना और इस अंतर यात्रा में चित्त को सबसे पहले पहचाना। इसी चिंतन यात्रा पर आगे चलकर स्वामी विवेकानंद खड़े हुए। कोलकाता में सन 1863 में जन्मे स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और आध्यात्मिकता संबंधित जो बात सन 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में दुनिया के सामने रखी, उसे सुन पूरा विश्व प्रभावित हो उठा। अध्यात्म विद्या के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। आइए इस यात्रा में और आगे बढ़ते हैं। मेरे लिए ये वो समय था जिसे कठिन समय कहा जाता है। गुलामी की काली रात थी, चारों तरफ अंधकार था। वहीं उजाले की उम्मीद लिए मेरे सपूत आगे बढ़ रहे थे और फिर दुनिया को एक नारा सुनाई दिया। वो नारा था जय हिंद। जिसने ये नारा लगाया वो विभूति थी सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के सामने अपने दम पर जापान के सहयोग से मेरे इस सपूत ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस उन दिनों हिटलर से भी मिले और दोनों की बातचीत के बाद 8000 भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों के साथ थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ छोड़ा। स्वतंत्रता संग्राम के लिए सुभाष चंद्र बोस के बढ़ते कदमों की आहट दुनिया भर को सुनाई दी। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे की गूंज
पूरी दुनिया में सुनाई देगी। सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। जय हिंद। जय हिंद। मेरे जवानों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी सर। क्या तुम मर मिटने के लिए तैयार हो? जी सर। मेरे कदमों पर चलने के लिए तैयार हो? जी सर। बलिदान देने के लिए तैयार हो? जी सर। क्योंकि केवल खून ही है जो आजादी की कीमत चुका सकता है। मेरा एक लक्ष्य है जो मुझे हर हाल में पूरा करना है और मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मेरे जवानों, यही सोच हमें प्रगति के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है और सफलता की ओर ले जाती है। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। चलो दिल्ली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। Unforgettable. अब इस यात्रा में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसने विश्व के धरातल पर भारत को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। घने और काले बादलों के आने पर कुछ समय के लिए सूर्य भी नजर नहीं आता। वैसी ही स्थिति उन दिनों मेरी थी, पर किसे पता था ये बादल अब हटने वाले हैं और गांधी रूपी सूर्य इस देश के लिए एक नया उजाला लेकर आने वाला है। मोहनदास, जो कि स्वयं पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा अनुसार पोरबंदर क्षेत्र के दीवान बन सकते थे, फिर भी वे शिक्षा के लिए विदेश गए। धनी और वैभवी परिवार से होने पर भी कई कठिनाइयों को झेला। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के कारण गोरों ने उन्हें ट्रेन से नीचे धकेल दिया। तब
उनकी आंखों में आजादी के सूरज की पहली किरण ने दस्तक दे दी थी। सत्य, अहिंसा, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, सदाचार, विनम्रता, ईमानदारी, आत्मसम्मान, सादगी आदि गांधी के कई गुणों से विश्व आज भी इतना ही प्रभावित है जितना उन दिनों था। वैसे ही कोई मोहनदास से महात्मा थोड़ी ही बन जाता है। इसलिए गांधी जी विश्व के लिए प्रेरणादायी है। मेरे प्यारे नगर के वासियों, आज नगर की एक और सड़क पे गांधी जी का नाम चढ़ चुका है। इस अवसर पर मेरे और आपके प्यारे मंत्री जी प्रवचन देने आए हैं। देवियों और सजनों, पटेल जी का नमस्कार। आप सब जानते हैं कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। इस बात का मुझे गर्व है और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज एक और सड़क पर गांधी जी का नाम चढ़ चुका है और मुझे लगता है कि एक दिन मेरा नाम भी किसी सड़क पर चढ़ेगा। रुको नेताजी, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो मेरे जीवन पथ पर चलने को कहा था, सड़क पर नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है गांधी जी? सड़क पर चलने से जीवन थकान बन जाती है और जीवन पथ पर चलने से थकान जीवन बन जाती है। सड़क पर चलने से रास्ता दिखता है, लक्ष्य नहीं, और जीवन पथ पर चलने से लक्ष्य दिखता है, रास्ता नहीं। पर मेरा सवाल ये है कि हम क्या करें जिससे हमारा राष्ट्र महान बने। बिल्कुल सही कहा बापू आपने। अगर हमें राष्ट्र को महान बनाना है तो हमें बापू के कपड़ों से नहीं, बापू की सादगी को अपनाना होगा। बापू के नाम पर बने राह पर नहीं, बापू के मूल्य, आदर्श और समर्पण से जीवन जीना होगा। अंततः हिंसा के हिमायती रहे जो, उनका मुल्क बर्बाद हुआ और गांधी जी के रास्ते पर चलकर वतन अपना आजाद हुआ। At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India awakes to life and freedom. Let's spread the message of secularism and non-violence given by our father of nation, leading to world peace. This song is dedicated from India to the world. We all love you! शामिल खेतों में झूमे फसल, तुझे न्योछावर, तन मन ए माँ, तुझे नमन ए माँ, तुझे ज्योति चले
चांदनी पर से घर आंगन, ज्योति जले पवन पवन, चांदनी पर से घर आंगन, धरती पर फैले वृक्ष सघन, सुरभि फूलों की मधुबन मधुबन, जलदायनी फलदायनी बयार चले, शीतल शीतल श्यामल खेतों में झूमे फसल, तुझे न्योछावर तन मन ए माँ, तुझे नमन ए माँ, तुझे नमन। गुलामी की काली रात खत्म हुई और आजादी का नया सवेरा हुआ। स्वतंत्रता के बाद मेरे सामने कई सवाल सिर उठाए खड़े थे। अनेक बाधाएं थी, कितने ही बंधन थे, रास्ते कठिन थे, पर मेरे हौसले बुलंद थे। आत्मविश्वास खूब उभर रहा था। मेरे सपूतों के पैरों में थनथनाहट थी और आंखों में उम्मीद की नई चमक थी। नए दौर की यात्रा की ओर मेरे कदम उठे। ये वो कदम थे जो अब रुकने वाले नहीं थे। आधुनिक काल का उदय हुआ। एक बार फिर एक नए भारत ने विश्व फलक पर छा जाने के लिए आगे बढ़ाए अपने कदम। आत्मनिर्भर बनने के क्षेत्र में मेरा पहला कदम था हरित क्रांति। इसके बल पर मेरे किसानों ने कृषि क्षेत्र में धूम मचा दी। गेहूं के उत्पादन में मैंने दुनिया भर में अपना नया मकाम बनाया। वहीं दूसरी ओर मेरी सरहदों की दिन रात निगरानी करने वाले मेरे सपूतों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। दुनिया ने जाना ये नया भारत है। इस स्थिति से प्रभावित तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया, जिसकी गूंज दुनिया के कोने कोने में सुनाई दी। दूसरी ओर श्वेत क्रांति से विश्व में मेरी एक और नई पहचान बनी। कृषि के बाद दूध के उत्पादन में भी मेरा नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। अमूल की आवाज देश के साथ दुनिया को भी सुनाई दी और साथ ही सुनाई दिया वर्गीस कुरियन का नाम। गुजरात आनंद में सहकारी अध्यक्ष त्रिभुवन दास पटेल के साथ मिलकर कुरियन ने जो कार्य किया, उसके परिणाम स्वरूप भारत दूध के उत्पादन में विश्व में सिरमौर बना। कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। मेरे अन्य कई सपूतों की तरह कुरियन ने भी दुनिया को ये कर दिखाया कि यहाँ का एक व्यक्ति भी अगर कुछ करने की ठान ले तो वो एक बंदा भी किसी एक बड़े समूह से कम नहीं। सुजलाम सुफलाम मातरम, मलयज शीतलाम मातरम, सुजलाम सुफलाम मातरम, मलयज शीतलाम मातरम, शस्य श्यामलां मातरम। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला,
मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। Hala, hala, hala. Dancing machine, connect engage. Throwback remix. ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया, भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है मेरा। A vibrant depiction of India's progress. Truly remarkable. दुनिया जिसे मिसाइल मैन के नाम से जानती है, ऐसे भारत के सपूत एपीजे अब्दुल कलाम ने समस्या में समाधान को ढूंढा। भारत की जनसंख्या जिसे अब तक समस्या मानी जाती थी, उसी को समाधान बनाते हुए
डॉक्टर कलाम ने देश और दुनिया को कई श्रेष्ठ विचार दिए जो आज विश्व फलक पर उड़ान भरने वाले हौसलों को भी बुलंद करते हैं। और आज उनकी ही एक किताब का विमोचन है। नमस्कार आप सभी को, मैं एक लेखक हूँ। अब्दुल कलाम जी ने कहा है, उनके जैसे दृष्टा प्रबुद्ध व्यक्तित्व हमको सफलता की राह दिखा के गए हैं। शिक्षा व्यक्ति को रचनात्मक बना देता है, सोचने से व्यक्ति को ज्ञान मिलता है और ज्ञान आपको महान बना सकता है। इसीलिए सफलता के सपने देखते रहिए, मगर याद रखिए सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं। सपने वो होते हैं जो नींद आने नहीं देते। सपने वो होते हैं जो नींद आने नहीं देते। यही सपने नए दौर का साक्षात्कार करेंगे। और अगर आप विकास के राह पर चल पड़े तो दुनिया आपके हस्ताक्षर के लिए कायल बन जाएगी। अपेक्षाएं जब हाथ पकड़ती है तब मिट जाती है निराशाएं। अपेक्षाएं जब हाथ पकड़ती है तब मिट जाती है निराशाएं और जग जाती है सफलता पाने की आशाएं। और जग जाती है सफलता पाने की आशाएं। धन्यवाद। नए दौर की मेरी यात्रा और तेज हो गई। अब रुकना मेरा काम नहीं था, लक्ष्य के बिना आराम नहीं था और मेरा लक्ष्य था विश्व फलक पर मेरे हस्ताक्षर। अब मेरी नई उड़ान थी अंतरिक्ष की ओर, साइकिल से गगनयान तक की। विक्रम साराभाई, होमी भाभा, अब्दुल कलाम आदि वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में भी नया मकाम हासिल कर दुनिया को अपनी क्षमताओं का परिचय दिया। एपीजे अब्दुल कलाम ने दुनिया को दिखाया, अगर आपके पास विशेष ज्ञान है तो समझिए दुनिया आपकी मुट्ठी में है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं। लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की
कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ, 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 शाबाशियाँ। अब बारी थी खेल के मैदान में अपनी क्षमताएं दिखाने की। सन 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। एक ओर विश्व चैंपियन वेस्ट इंडीज, दूसरी ओर मेरे योद्धा। कपिल देव की अगुवाई में खेल के मैदान में उतरी भारतीय टीम के योद्धाओं ने वो कर दिखाया जो दुनिया के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। मेरे चैंपियन बनते ही क्रिकेट के क्षेत्र में जैसे यहां एक सैलाब आ गया। गली गली में हर मौसम में क्रिकेट की बहार नजर आने लगी। दुनिया भर में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना एक खास मकाम कायम किया। फतेह एक शेर आया शेरों दा शेर, फतेह 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 एक शेर आया शेरों दा। छोले अखां के बलदे हैं तलवार नाल हो, रब दे बंदे चलदे हैं सहरा बांध के जदों। ढोल ताशे बजदे बजदे डम 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 डमरू, गजदे ने गज गजदे ने गज गजदे ने गबरू, गजदे ने गज गजदे ने गज गजदे ने गबरू। फतेह 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 जदों ठाने रब ते बनते हम, रुकदे ना झुकदे ना टुटदे गबरू, जो कहंदे ओ करदे गजदे ने गजदे गबरू। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो खोल दो। लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। लहरा दो
नए दौर की ओर मेरी उड़ान और तेज होती गई। अब तरक्की के नए क्षेत्रों को छूना था। ऐसे समय मुझे नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह तथा साम पित्रोड़ा जैसे दूरदृष्टा मिले, जिन्होंने अभ्यास के आधार पर उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति अपनाकर विश्व की ओर उद्योग के क्षेत्र में कई नए दरवाजे खोले। इन दरवाजों से प्रगति, विकास और सफलता देश के साथ साथ दुनिया भर में नए रास्तों की ओर चल पड़ी। कई नए औद्योगिक क्षेत्रों में मेरे परचम लहराने लगे। साथ ही अनेक उद्योगपति भी उभर कर सामने आए, जिन्होंने देश और दुनिया में अलग अलग मकाम हासिल किया, जैसे टाटा ग्रुप के रतन टाटा, इंफोसिस के नारायण मूर्ति, रिलायंस के मुकेश अंबानी। ये वो स्वर्ण समय था जब चारों दिशाओं में मेरी तरक्की की हवाएं चलने लगी। देश के अनेक क्षेत्रों में से प्रतिभाएं उभरकर वैश्विक धरातल पर गूंज उठी। संगीत के क्षेत्र में A.R. रहमान ने मंत्रमुग्ध कर दिया, तो स्वर के क्षेत्र में लता मंगेशकर की सुरीली आवाज का जादू छा गया। क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर का बल्ला बोल उठा। सिनेमा के क्षेत्र में एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की बोलबाला हो गई। एक आवाज जो इस प्रतिभा की जुबान से भले ही निकली हो, पूरे भारतवर्ष की आवाज बनकर जैसे विश्व फलक पर छा जाना चाहती थी। वो आवाज थी, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। और आने वाले वर्षों में ऐसा ही होने लगा। मैं एंग्री यंग मैन से महानायक बना। कौन जानता था कि आजादी के 50 वर्षों में मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। मेरे सपूतों ने अपने ज्ञान के दम पर दुनिया के अनेक देशों में टेक्नोलॉजी, उद्योग, विज्ञान, राजनीति, कला, साहित्य, योग आदि कई क्षेत्रों में अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ दिए। मेरी क्षमता, आदर्श और मूल्य तथा आध्यात्मिकता अब दुनिया भर में छाने लगी। सुंदर पिचाई, सद्गुरु जग्गी वासुदेव, श्री श्री रविशंकर, सत्य नडेला, अजय बंगा, विजय रामास्वामी, ऋषि सुनक, अमर्त्य सेन आदि कई ऐसे नाम हैं जो सिर्फ दुनिया भर में गूंजे ही नहीं बल्कि अपनी एक अलग पहचान लिए खड़े हैं। अगर योग की बात करूं तो आज विश्व जिस योग के पीछे दीवानों की तरह दौड़ रहा है और प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मना रहा है, मेरे यहाँ के लोगों ने उस योग को सदियों पहले अपनाकर उसका मूल्य और महत्व स्थापित कर विश्व को सदियों पहले इस बात से अवगत कराया था। योग ही नहीं, भारतीय आध्यात्मिक विचार और उसमें भी खासकर पंच तत्व की बात आज विश्व को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रही है। कई भारतीय आध्यात्मिक गुरु विश्व भर में प्रसिद्ध है और उनके विचार इत्र की खुशबू की तरह चारों ओर फैल रहे हैं और दुनिया में खुशनुमा माहौल बनाते जा रहे हैं। सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी। योग धारा चलत छन छन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में
अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी। योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी झनन 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 झनन। सांस शाश्वत झनन झनन। प्राण गुंजन झनन झनन। सांस शाश्वत झनन झनन। प्राण गुंजन झनन झनन। सांस शाश्वत झनन झनन। प्राण गुंजन झनन झनन। उतर मुझ में आदि योगी। योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत झनन झनन। प्राण गुंजन झनन झनन। उतर मुझ में आदि योगी। मेरे कई सपूत दुनिया के विभिन्न देशों में रहकर मेरा गौरव बढ़ा रहे हैं। वहीं कई सपूत देश में रहकर मेरी ख्याति दूर दूर तक फैला रहे हैं। इसमें एक प्रेरणादायी नाम है आनंद शर्मा का। ये एक भारतीय शिक्षाविद है। मेरे इस सपूत ने अपने दम पर सुपर 30 कार्यक्रम चलाया और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों की काबिलियत दुनिया के सामने रख दी। इनसे प्रशिक्षित 400 से भी अधिक छात्र IIT के लिए चयनित हुए। इनकी यश गाथा सुनकर अमेरिकी प्रमुख स्वयं इनसे मिलने आए थे। मेरे इस सपूत ने यह साबित कर दिखाया कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। इनकी कहानी से हमें पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र की उच्चतम सफलता राष्ट्र की रगों में कैसा जोश पैदा करती है। अब स्वयं देख लो। हमारे स्कूल दिव्य पथ से गुजरात में पहली बार IIT के टॉप 25 में पहुंचा सोहम गाणात्रा। देश की टॉप टेनिस प्लेयर दिव्या भारद्वाज आज वैश्विक फलक पर खेल रही है। जब विज्ञान में दिव्य पथ ने अपने आप को आजमाया तो गुजरात में पहली बार नासा के मंच पे पहुंचे हमारे बच्चे। जब वक्तृत्व में हाथ आजमाया तो शहर की सुप्रसिद्ध वक्तृत्व स्पर्धा में 7 बार गोल्ड मेडल जीता। 5वीं कक्षा की जर्ना दामोदर इंग्लिश वर्ड पावर में वैश्विक फलक तक पहुंची। यह बढ़ते कदम आज प्रगति के नए प्रस्थानों को छू रहे हैं। दिव्य पथ की विकास यात्रा आज भी चालू है और इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इस नए दौर में विश्व फलक पर अपने हस्ताक्षर जो करने हैं। धन्यवाद। हम दीप शिक्षा के हैं, जगमगाएंगे जगमगाएंगे जग में। जितने अंधेरे भी हैं हम मिटाएंगे जग में। हम दीप शिक्षा के हैं,
सपने अंबरांदे, ए सपने अंबरांदे, बूंद बूंद जोड़ेंगे, पल पल दूर दूर बह जाएंगे, फिर नाल समंदरा दे, फिर नाल समंदरा दे। आइए अब इस नए दौर की यात्रा में चलते हैं आगे, नए मकामों की ओर। अब अनेक क्षेत्रों में मेरी प्रसिद्धि के परचम लहराने लगे हैं। मेरी विकास यात्रा के रथ को एक ऐसा सारथी मिलता है जो विश्व फलक पर मेरे हस्ताक्षर कायम करने के साथ साथ विश्व को एक नए भारत की नई पहचान भी करवा रहा है। वो नाम है नरेंद्र मोदी। मेरी समृद्धि और विकास का जो विचार पौधा अब्दुल कलाम ने लगाया था, उस पौधे को वट वृक्ष के रूप में साकार करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वो समय है जब एक ऐसा मुख्य प्रधान राष्ट्र की धरोहर पर उठ खड़ा हुआ है जिसने विकास की तेज रफ्तार के साथ विचार की दिशा बदली, नए संकल्प चुने, लोगों की शक्ति और सामर्थ्य को पहचाना और देश के युवा धन का स्केल बदल दिया। ऐसा आज तक कहीं नहीं देखा गया कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में हारी हुई टीम का मनोबल टिकाने के लिए उस देश का प्रमुख प्रधान खुद क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गया हो। एक ऐसा मुख्य प्रधान जिसने टनल में फंसे 12 मजदूरों को बचाने के लिए केंद्र के एक मंत्री को उसी जगह पर शिफ्ट होने का आदेश दिया। एक ऐसा मुख्य प्रधान जिसने मुश्किल हालातों में फंसे देशवासियों की सुरक्षा और उन्हें बचाने के लिए कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।
पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस छल फरेब की आंधी में, छल फरेब की आंधी में, ये दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे मातरम। सबका साथ सबका विकास। हाल ही के दिनों में यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ी। इस जंग में फंसे मेरे 22,000 से भी अधिक नागरिकों को सकुशल देश में लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की घोषणा हुई। जैसे मां अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं छोड़ती, वैसे ही इस मुख्य प्रधान की सरकार ने यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को एयरलिफ्ट करवाया और एक बार फिर विश्व फलक पर मेरा परचम लहराया। मेरे मुख्य प्रधान नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो कर दिखाया जिसे देखकर कई देश दांतों तले उंगलियां चबाने लगे। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले, छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। खोल दे पर, 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 खोल दे पर।
रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है। आसमान के साथ साथ रूस का ग्राउंड एक्शन भी तेज हो गया है। हर दिन हर मिनट यूक्रेन के बड़े हिस्से पर रूस कब्जा जमाता हुआ चला जा रहा है। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया। डरना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया। यूक्रेन युद्ध से बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को निकालने का सिलसिला भी जारी है। भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा, तू जीता रहा तेरे लिए, वो मरता रहा। तेरे दर्द की आहट सुनी सब छोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी, वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के। युद्ध के बीच में प्रेसिडेंट पुतिन को भी फोन किया रशिया में, प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी फोन किया। 2 बार 2 शहरों में खार्किव और सिमी में जब लड़ाई बहुत माने हमें लग रहा था कि हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है, तो उन्होंने फोन करके कुछ समय के लिए फायरिंग रुकवाई ताकि हमारे लोग बाहर। यूक्रेन में युद्ध के बीच ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश लौटे इन छात्रों की खुशी देखते ही बनती है। अपनों से गले मिलकर छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं, तो वहीं परिजनों के लिए उनके बच्चों की वापसी भावुक कर देने वाली है। वहीं बच्चे भी सरकार और भारतीय दूतावास को शुक्रिया कह रहे हैं। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर
है बेधड़क सी यादियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया के उड़ रही है बेधड़क सी यादियां। नए भारत के नए दौर की यात्रा अनेक नए क्षेत्रों को पार करती हुई लगातार आगे बढ़ती रही है। अनेक क्षेत्रों में मैं बहुत आत्मनिर्भर हुआ। आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते मेरे कदम और तेज होते जा रहे हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन सभी क्षेत्रों में भी मैं अब कई हद तक आत्मनिर्भर हूं। मेरे संरक्षण का क्षेत्र दिन प्रतिदिन अधिक प्रगति कर रहा है। आत्मनिर्भरता के बल पर अब स्थिति यह है कि कई देश इस मामले में मुझ पर निर्भर है और प्रगति की दिशा में मेरी ये यात्रा लगातार जारी है।
जिंदाबाद तू, शेर शाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू। फूकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू। बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू, शेर शाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू। फूकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू। घाव बदन पे सहता जा तू, भारत भारत कहता जा तू। पर्वत चढ़ता जा तू, वीर बहादुर लड़ता जा। शपथ है तुझको इस माटी की, लड़ना जब तक जान है बाकी। दम रुक जाए कदम रुके ना, जय हिंद की सेना। जय हिंद की सेना। जय हिंद की सेना। तिरंगा हम ही लहराएंगे। जय हिंद की सेना। जय हिंद की सेना। मेरे सपूतों की तरह मेरी बेटियां भी इस नए दौर में अनेक क्षेत्रों में अपनी सफलता का परचम लहराकर दुनिया को अपनी क्षमता का परिचय दे रही है। आज भारत की बेटी भी विश्व फलक पर देख रही है अपने हस्ताक्षर। इनमें है स्मृति मंदाना, झूलन गोस्वामी, मैरी कॉम, मंजू रानी, सरिता देवी, शीतल देवी, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर गुंजन सक्सेना, कैप्टन तानिया शेरगिल, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ओ सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया। तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना। जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना। जा जी ले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना। तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना। सपने सच करने की तेरी बारी। ओ, तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीत
ये यात्रा है नए भारत की, नए दौर की यात्रा। मगर ये यात्रा ऐसे संभव नहीं हुई, इसके पीछे कई लोग हैं। अनेक माँ बाप ने अपने बच्चों की क्षमताओं को बचपन से ही जाना, पहचाना और उनकी दिशा तय कर उन्हें सफल पथ यानी दिव्य पथ का यात्री बनाया। IIT, IIM, गुरुकुल जैसे बड़े बड़े संस्थानों ने अपने छात्रों के भविष्य के लिए विशेष भूमिका निभाई है। साथ ही सरकार ने भी अपनी भूमिका खूब निभाई। देश के विद्यार्थियों के हित में कई नई पॉलिसी बनाई और उसके अनुकूल नीति नियम भी कायम किए और शुरू हुई प्रगति की यात्रा। अरुणिमा ने सही कहा है, सबका एवरेस्ट अलग है। कोई बच्चा विज्ञान में आगे है तो कोई इतिहास में आगे है, लेकिन सफलता को पाकर सभी आगे बढ़ते हैं। कोई IAS बनता है तो कोई IPS, कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, कोई सफल बिजनेसमैन बनता है। हमें इसी तरह बुलंदियों को छूना है। 21वीं सदी गति, दिशा और आविष्कार की सदी है। 21वीं सदी में प्रगति के आयाम, व्यक्तित्व विकास के मानांक और मनुष्य के बदले मशीन दुनिया को निरंतर बदल रहे हैं। अगर आप बदलाव के इस प्रक्षेप को समझ लो तो बच्चों का जोश बदलेगा। अगर आप बच्चे को वक्त दे रहे हैं तो फेसबुक का प्रभाव कम होगा। अगर आप विफलता में भी उसके साथ हो तो बच्चे सफलता को पकड़ लेंगे। आप अपना रवैया बदलो, हम अपनी क्षमता बदले तो हमें विश्वास है कि भारत का कण कण शंकर बन जाता है। वैसे बच्चा बच्चा जय शंकर बन जाएगा। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान।